Hi Piku, how are you? I'm good. How are you? I'm fine, I'm good. अभी कैसा चल रहा है ये लॉकडाउन में? What are you doing nowadays? Actually, I just wake up and cook my meal and eat, and then I go back to, I just read something about fitness, and again, same routine goes on and goes on. So, you tell me about yourself. Okay, so Piku, as many people know about me, that my name is Nitesh Yadav. I'm the HOD of MyFi Groups, that is the MyFi India, and the teaching faculty at MyFi Gurgaon. So I've been teaching for around 4 to 5 years. About my qualification, first I've done the BTech. After doing various jobs in this BTech, I have switched my career from the BTech industry to the fitness industry. So I joined first of all K11. My first course was from K11, so I Okay. think we both are mutual in that respect. Yeah, yeah. After doing that K11, I've done various kinds of jobs in that. I've been fitness manager. Then after that, फिर उसके बाद मैंने एस ज्वाइन किया, फिर मैंने एस किया। एस को क्लियर करने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि इस जिम लाइन से थोड़ा आगे आना है, क्योंकि हर कोई बस इस जिम के अंदर ही है, जिम जिम जिम। तो अगर उससे ऊपर आना है तो आपको भीड़ से कुछ अलग काम करना पड़ेगा। और भीड़ से अलग जाने के लिए फिर मैंने कहा एनएससीएस सीएससीएस, दैट इज नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट। ये वो होते हैं जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। तो मैं काफी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ भी काम कर चुका हूं और अभी भी करता हूं। पर मेरा जो मेन प्रोफेशन है, जो मेन मेन पैशन है, वो टीचिंग के अंदर है। मेरे ग्रैंडफादर भी ये टीचर रहे हैं। मैं भी जब ये बीटेक के अंदर था तो 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो वो एक सर्कल बन के इसी तरह से आया कि मैं टीचिंग से दूर जाना चाह रहा था, पर टीचिंग मेरे को अपने पास बुला रही थी। Teaching has been in your blood. या कैन से It's दैट। like that. It's like that. So, it's really ये good मेरे to बारे में hear था। you और actually. करंटली आई एम वर्किंग एज एचओडी। और टीचिंग फैकल्टी में जो ऑनलाइन क्लासेस होती है माईफाई इंडिया की, वो सारी मैं ही कंडक्ट करता हूँ। और जो भी यहाँ पे जो ये टीचर्स होते हैं उन सबका ये रिक्रूटमेंट और कैसी परफॉर्मेंस है, तो ये सब देखने का काम मेरा है। और एज अ होल माईफाई ग्रुप्स को आगे लेके चलना है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग लेवल्स। आप अपने बारे में कुछ बताइए पीकू। Actually, I'm just a normal person. I've not done this much certifications हिंदी like में बात करिए ताकि but हमारे जो uh, फॉलोअर्स हैं। but the thing is, I'm certified from K11 and working out since 4 years. It's been four ओके। years since I'm working out, and it's been maybe 2 years since I'm in the science since I'm in this fitness industry. Like I'm training people. So हम्म। that's all about me. Not much. एंड अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, एज जॉब और एज अ Actually, I'm फ्रीलांसर? currently working in Chris Gethin Gyms, Gurgaon, which is in ओके। Grand Mall. And या actually, it's a very good brand. I found out about this brand online. So, I just reached out to them. They are very nice people, and Chris Gethin as well. He's a very educated and nice person. So, I just wanted to work with a good brand who gives good opportunity to grow. And they actually give. So, actually, I'm just loving the work, but due to lockdown, gyms are shut. No, but like gyms are not open. So right now I'm just sitting at home and try to make some good videos for people to motivate them. So I just do all these things. दैट्स अ ग्रेट वर्क, दैट्स अ ग्रेट एजेंडा दैट यू आर फॉलोइंग। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आप पूछ सकते हैं। Yeah, actually I have quite questions for you. ओके, सो आई Yeah. थिंक यू हैव डन प्रीटी गुड होमवर्क आई गेस। No, actually, it's always good. No, actually, I also wanted to know some things. There are lot of things about fitness because education is an ongoing process. So डेफिनेटली जितना हम कम पढ़ते हैं उतना हमें फील होता है कि हमें बहुत ज्यादा आता है। जब मैंने K11 किया तो yeah. मेरे को लगता है मेरे को कितना कुछ आ गया है, पर जैसे Oh जैसे मैं God, आगे। that flew that flew was stuck in my mind too. That I know everything and I'm the right person on this planet. मेरे सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है. Definitely. Same goes to many people like that। तो जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही पता चलता है कि हमें कितना कम आता है।
Yeah, I Even think they people like that. It's not their fault, but I think their study pattern is like that. That people blindly trust that. You know, they don't think कि उसके beyond भी कुछ हो सकता है. definitely the वो We environment were ऐसा talking है. about keto. So we were talking about K11. So they blindly trust on keto diet. So what do you think about keto diet, and is it good for like our Indians, our genes? Like it is came from foreign now. We have never done keto in India. So do you think like keto is good for everyone? Like they say that there is no genes, no body type. Keto is good for everyone. So do you agree on that? I will say that in general term, one t-shirt doesn't fits all. चाहे वो Yeah. कितनी टी शर्ट क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह की टी शर्ट बनी हो कि वो सारे साइज पे आ जाए, पर कभी ना कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जिसपे वो फिट नहीं होगी. तो सेम गोस फॉर कीटो एंड फॉर एनी अदर डाइट. कीटो की बात हम यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल डाइट चल रही है आजकल के टर्म्स में. तो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या होती है. जैसे आपने एक बहुत ही राइट टर्म यूज करी, जेनेटिक्स. तो हमारी Yeah. जो इंडियन जेनेटिक्स है ना, हमारी जेनेटिक्स की म्यूटेशन इस तरीके से है कि हम हाई कार्ब डाइट के लिए बने. अब देखिए, कार्ब लेने से डायबिटीज भी होती है, बहुत सही बात है, पर सिर्फ कार्ब लेने से नहीं, किसी भी चीज को आप एक्सेस में अगर आप लोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी. एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, वेदर इट्स हाई प्रोटीन, वेदर इट्स हाई फैट, वेदर इट्स हाई कार्ब, प्रोवाइडेड कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. आप अच्छे से अच्छा कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन ले लीजिए, पर उसके बाद भी अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो दैट इज ऑफ न्यू यूज. सेम गोस फॉर कीटो. अब कीटो के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि मेन जो कीटो डाइट बनी थी ना, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बनी थी. कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है कि सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा, सेल डिवीजन. तो जो हमारे ये व्यूअर्स हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो शायद समझेंगे कि सेल्स का डिवीजन वो प्रोलिफरेशन होता है. तो इस तरीके से वो प्रोलिफरेट करता है. तो जो कीटो डाइट दी गई थी ना, तो हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स है वो होता है ग्लूकोज. तो जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करेंगे. तो इसलिए वो बनाई गई थी, इसलिए वो दी गई थी. अब जैसे आपको पता है, स्टेरॉइड केस के अंदर भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बनाए गए हैं, पर हम अपनी बॉडी को एस्थेटिकली बना रहे हैं. बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही उसका मिसयूज करके किया जाता है. अब प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर कि आपको डाइट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे जो बॉडी के जेनेटिक्स हैं, जो हमारे म्यूटेशन है, जो हमारे डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम वगैरह, कितने भी टेक्निकल टर्म्स में नाम इसमें ये काउंट करा दूं, शाम तक खत्म नहीं होगा. तो ये हमारे म्यूटेशन इस तरीके के हैं कि हम कार्ब्स के ऊपर ही बने हैं. अब जैसे आजकल चलता है, एक और टर्म है ऑलिव ऑयल, कि ऑलिव ऑयल महंगा है, बहुत अच्छा है, बट जो अगेन जो हमारे जेनेटिक्स है वो सरसों के तेल पे है, दैट आर बेस्ड ऑन मस्टर्ड ऑयल. तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करोगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू योर बॉडी. आई एम नॉट सेइंग दैट इफ यू विल यूज द ऑलिव ऑयल दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर बॉडी, बट द बेस्ट थिंग फॉर योर बॉडी विल बी द मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज आवर म्यूटेशन, आवर जेनेटिक्स आर बेस्ड इन दैट. और अगर आपने अपने म्यूटेशन और जेनेटिक्स को चेंज कर रहा है ना, तो हजारों लाखों सालों तक वो चीजें करनी पड़ेगी. तो हजारों लाखों सालों से आज से अगर हम चालू होंगे और फिर हाई फैट पे रहेंगे, तब जाके शायद हमारी बॉडी के म्यूटेशन जेनेटिक्स चेंज हो. तो करने में कर सकते हैं, बट ये 2-3 महीने का प्रोग्राम है. इसको आप लाइफस्टाइल के लिए कर लो, वो कर लो, तो ऐसा कोई बात नहीं. Because I personally tested this diet plan on my body, but somehow it doesn't suits me. Because people do it for fat loss, but somehow I end up gaining fat. I never used to lose fat because I have this problem of acid reflux. So if I have this problem, I can't go on high protein diet. For a second. Yeah. I think the sound has gone a bit. कॉल आई थी, उसकी वजह से वो. Yeah. Yeah. Yes, please go ahead. So what I was saying that if I have this problem of acid reflux. तो जब मुझे कुछ खाना होता है तो मुझे बहुत देख के खाना होता है, बिकॉज इज इट ओके? प्लीज रिपीट. वो साउंड का थोड़ा इश्यू है, तो इस वजह से आ नहीं पाई साउंड. आप दोबारा बताएंगे प्लीज.
तो मैं कह रही थी कि लाइक मुझे मेरी साउंड बैक आ रही है। बैक आ रही है साउंड? या एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो मेरे को देना ईयरफोन। एक सेकेंड, मैं ईयरफोन यूज कर लेता हूँ शायद इससे। दिस फाइन नाउ? Yes, Piggy, please, बोलिए. Yeah. So when I was studying in K11, so I just started testing this diet on me. So but I found out that I have this problem of acid reflux. So whenever I used to take a high fat meal, my acid reflux problem used to go high. I used to feel more acidic, and all these acid kind of bugs used to come. So what do you think about this one? देखिए Why इसके people can't do a fat diet? Uh, देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि कीटो डाइट जैसे मैंने बताया करने में कर सकते हैं पर ये प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अब जैसे आपने एग्जांपल्स दिए कि आपकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो वी एज माईफाई गुड़गांव एंड द माईफाई ग्रुप्स हम यही आपको बताना चाहते हैं, मतलब आप इन द सेंस ऑफ द व्यूअर्स, कि सिर्फ खाली कीटो डाइट पे चीजें नहीं डिस्कस होती हैं, आपको एक ब्रॉड टर्म लेके चलना पड़ता है, आपको एक ना होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। तो आपको ये बताया जाता है कि हाई कार्ब डाइट से आप कैसे ज्यादा गेन कर सकते हैं, कैसे फैट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज का एक्सपेंडिचर होता है जिसपे सारी बातें होती हैं। तो ओवरऑल कैलोरीज एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपका 3000 कैलोरीज मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट और द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बोल लीजिए या फिर आरएमआर बोल लीजिए। तो उसके अंदर अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 200 कैलोरी का डेफिसिट करना पड़ेगा, अगर मैं प्रॉपर वे में कहूं, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो 3000 कैलोरी अगर बर्न होती है और आपने 200 कैलोरीज का डेफिसिट कराया, तो वो आपके ऊपर, आप 50% फैट डालना चाहें, 50% कार्ब डालना चाहें, पर अगर आप कार्ब डालेंगे तब भी सेम अमाउंट ऑफ फैट लॉस होगा या कुछ ज्यादा ही फैट लॉस होगा अगर आप हाई डाइट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब पे रहें तो भी। तो ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो आपका टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर वो करता है डिपेंड, ना कि आपका हाई कार्ब या हाई प्रोटीन या हाई फैट। अब देखिए प्रोटीन के ऊपर भी बताया जाता है कि आपको हर डाइट में ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए। तो क्या आज से पहले जो हमारे बाप दादाओं ने कभी जो मील ली है, क्या उसमें कोई प्रोटीन नहीं था? क्या आपकी ये हम ये क्या कहते हैं चपाती, क्या इसमें प्रोटीन नहीं है? बहुत अच्छा प्रोटीन है, ठीक है, नॉन वेज सोर्सेज के मुकाबले नहीं है, बट हमारी इंडियन मील बनी ही ऐसे है कि उसमें सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलग अलग डाइट के अंदर होते हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह फॉलो नहीं करते कि हम सिर्फ चिकन ही खा रहे हैं, हम सिर्फ स्टीक ही खा रहे हैं, हम एक थाली बनाते हैं जिसके अंदर आपके अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, अलग अलग तरह के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के आपके और विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब बॉडी के अंदर जब आपका स्टमक एरिया जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, आपका गट प्रॉब्लम करता है, तो मेन प्रॉब्लम आती है इसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी। हम विटामिन और मिनरल्स को भूल जाते हैं। जो हमारी बॉडी है ना, जो हमारा बेस है, वो माइक्रोज पे बना है ना कि मैक्रोज पे। हम मैक्रो से फोकस करते हैं, हाँ, जो हमें दिन में 10 ग्राम से ज्यादा चाहिए, जैसा आपको पता है मैक्रो क्या होता है, जो हमें मिनिमम 10 ग्राम से ज्यादा चाहिए होता है, तो हम उसके ऊपर फोकस करना चालू करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वो मैक्रोज ही मेटाबोलाइज जब होंगे जब आपकी बॉडी में माइक्रोज होंगे, जो कि मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, इंटरनेशनल यूनिट्स उनकी फॉर्म से प्रेजेंट होते हैं। तो वो इतना सा माइक्रो ना 0.01 माइक्रोग्राम या 1 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम, वो आपके 100-200 ग्राम प्रोटीन, कार्ब, फैट से भी कई ज्यादा बढ़ के होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट हो गए तभी गट हेल्थ कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। we definitely need micros, like we need micros to break down our macros. How it डेफिनेटली। goes. Yeah. So actually moving on to my next question. You know, जी 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 प्लीज। this one is like very different kind of a question. I'll just ask you. If someone have asthma problem, if someone asthmatic and have shoulder injuries and back injury, how the person can start workout after recovery? If the person have these three problems: asthma, back injury and shoulder injury, how the person start working out after recovery or in recovery phase, in cardio or in weight training? Because a lot of people ask me when like they have they are heart patient
they have asthma, they have knee injury, they have back injury, and they just ask me that can we work out? We are recovering and in the recovery phase. So I just would like to ask you this question. देखिए, ये ऐसा होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना बॉडी के अंदर, तो हम दोबारा से पहले फेज के अंदर चले जाते हैं जो आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर होता है, दैट इज स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है वो 4 फेजेस में डिवाइड होती है, जैसी हमारी कार्डियो की ट्रेनिंग होती है। मैं नाम गिनवा देता हूं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में पहला फेज होता है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, फिर आता है मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर आता है लोड ट्रेनिंग जो हम लोड पे फोकस करते रहते हैं, और फिर बाद में आता है परफॉर्मेंस जो हम क्लीन एंड जर्क, स्नैच या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो जब इंजरी आ जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम दोबारा से फर्स्ट फेज में चले जाते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। तो आपको उसमें अपनी स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी फोकस करना है, क्योंकि एक तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम है, दैट इज द अस्थमा। उसके साथ साथ शोल्डर और बैक में प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया, तो उसके अंदर फिर उसको अपनी स्पाइन की एक्सटेंसिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने शोल्डर्स की एक्सटेंसिबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेंथ रीगेन करनी पड़ेगी। रिहैब का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपको जो है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब जैसा आपको तो शायद पता ही होगा, पर मैं व्यूअर्स को बता देता हूं। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें मसल की लेंथ चेंज नहीं होती, कोई भी होल्डिंग वाली एक्सरसाइज। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी शोल्डर में इंजरी है, तो फिर आप उसको ये मूवमेंट नहीं कराओगे, आप एक पॉइंट पे जहां पे वो अच्छे संभाल सकता है वेट को, फॉर एग्जांपल चेस्ट के अंदर, वहां पे सिर्फ होल्ड कराएंगे, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ब्रेन से एक्शन पोटेंशियल आता है जो कि आपका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उस काम को परफॉर्म कराने के लिए। वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाएगा, वहां से एसिटाइलकोलाइन आएगा, तो ये केमिकल्स जैसे जैसे आपकी बॉडी में आना चालू करेंगे, वैसे वैसे हमारी बॉडी और अच्छे से काम करना चालू करेगी। नॉर्मल तरीके से तो आते ही है, पर जब इंजरी हो जाती है तो इनका जो वो एक ये होता है वर्क फ्लो, वो हिंड्रेंस हो जाता है। तो हिंड्रेंस आने के लिए पहले ना आइसोमेट्रिक करना पड़ता है, ताकि हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और एक आइसोमेट्रिक का प्लस पॉइंट है कि आपने जिस एंगल पे अपनी बॉडी को आइसोमेट्रिकली हिट करा है, उस एंगल पे आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगी। उस एंगल पे आपकी, अगर फॉर एग्जांपल हम प्लैंक करते हैं, तो प्लैंक के उस एंगल के अंदर हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ना कि अप या डाउनवर्ड फेज में। ऐसी आपकी हर एक एक्सरसाइज के अंदर है। तो जो हम वॉल सिट कराते हैं, अब ज्यादातर लोग कराते हैं वॉल सिट, ठीक है, कुछ भी आपको अगर कराओगे तो बॉडी के लिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बट जो स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं वो वॉल सिट करने के लिए नहीं बने। जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, फ्लोर एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, ठीक है, आपकी नॉर्मल जो एक तरह की स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल योर कैट कैमल, योर बर्ड डॉग, ग्लूट ब्रिज, ठीक है, शोल्डर एक्सटेंशन, एंड देयर आर n number of exercises which I can count on my hands and various other exercises too। तो इसके ऊपर फोकस करना है पहले, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी पे। जैसे जैसे वो धीरे प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे फिर उसको मूवमेंट के ऊपर लेके आना। मूवमेंट का मतलब उसको धीरे धीरे आइसोकाइनेटिक वे में जाना है। आइसोकाइनेटिक मतलब सेम स्पीड से। अगर उसकी शोल्डर में उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रेंथ आ गई है, तो इस पॉइंट में करेगा होल्ड, फिर इसके अंदर होल्ड करेगा। एक दिन में ना हो भले ही, पर जितना भी टाइम लगे धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा। तो अभी सारी रिहैब की बातें हैं, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, अगर कोई ये फिटनेस ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर है, तो प्लीज मेरी बातों को एकदम से सुन के उस बात को कोरिलेट करके आप वो अपने क्लाइंट पे ना आजमाए, क्योंकि ये बहुत सारे सालों की प्रैक्टिस होती हैं जिसके पीछे भी और सारी मोडालिटीज होती हैं। तो आइसोकाइनेटिक वे में करेंगे। जब आइसोकाइनेटिक वे आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आप आइसोटोनिक पे जाएंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। ये तरीका होता है। बाकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, जैसे वो होगी उसके बाद मूवमेंट कराएंगे, मूवमेंट के बाद लोड देना चालू करेंगे। और अस्थमा के अंदर ब्रोंकाई डायलेटर्स होने बहुत जरूरी हैं। ब्रोंकाई डायलेटर्स होते हैं जो वो होता है ना, ये आता है पंप आता है अस्थमा का, तो ब्रोंकाई डायलेटर होता है, वो अपने ब्रोंकियोल को खोल देता है, एयर पैसेज को और खोल देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। वो तो हो गया पंप के जरिए। पर वैसे अगर हम अपनी बॉडी का ब्रोंका डायलेशन और इंक्रीज करना चाहें, तो होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। हमें अपने फिटनेस का फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, उसको अच्छा करना पड़ेगा। और उसको अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले ये नहीं है कि अगर आपको उसको इंप्रूव करना है तो आप पहले से ही भागना चालू कर दोगे। ऐसे अब कार्डियो ट्रेनिंग के फेज होते हैं, एरोबिक बेस, एरोबिक एफिशिएंसी, एनारोबिक एंड्योरेंस, एनारोबिक पावर। तो हम एनारोबिक पावर में जाना चाहते हैं, पर हम एरोबिक बेस के अंदर भी नहीं है, तो पहले नॉर्मल वॉक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायबिटीज के अंदर यही बताया जाता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए ज्यादातर यही हेल्पफुल होता है कि वो वॉक करें, एटलीस्ट अपनी बॉडी को मूव कराएं, फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इनहेरिट करें,
क्योंकि जो मेनली प्रॉब्लम्स होती है ना वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से बहुत कम आती है। Actually, you quite covered my whole points. So moving out to my next question. Actually, you just covered this question as well, like how much micronutrients are important for our body. You just told me. So जी तो आई थिंक मैं हिंदी में बोलती हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है. सो जी जी बिल्कुल। तो हाउ मच कार्डियो शुड बी डू इन अ वीक? लाइक लोग पूछते हैं ना कि कितना कार्डियो करना चाहिए. उनको सबसे बड़ा मिथ ये है कि कार्डियो करने से मसल लॉस हो जाएगा. कार्डियो करने से उनका जो मसल लॉस हो रहा है या फिर जो उनका गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो कार्डियो करना छोड़ देते हैं. लाइक गेनिंग फेज में और ऐसे उनका जो फेज होता है वहाँ पे वो कार्डियो बिल्कुल नहीं करते हैं. एंड मैंने यहाँ तक देखा है कि गेनिंग फेज में लोग एब्स की भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिकॉज दे जी आर लाइक क्यों करना है बिकॉज गेनिंग कर रहे हैं हम. So what do you think about all these points? What your ओके, आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू. माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि आप चाहे फैट लॉस करो या मसल गेन करो, आपको सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी को भी फोकस में रखना पड़ेगा, जो कि अभी आज के टाइम में कोरोना है. अब कोरोना अटैक कहां करता है? कोरोना इज सार्स वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड नोवल कोरोना वायरस 19. तो अब ये अटैक करता है लंग के अंदर. ठीक है, अब लंग किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है? हार्ट के साथ, क्योंकि हार्ट से जो आपका ब्लड आता है, जो आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो फिल्टर होने के लिए आपका लंग्स में जाता है. मतलब फिल्टर का मतलब है गैस एक्सचेंज. तो गैस है, तो वो सिंक्रोनाइज उस तरीके से है. तो जब तक अपना कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छा नहीं करोगे तो आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा नहीं कर पाएंगे. जब बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो फिजिक तो बना लेंगे, पर फिजिक बनाने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे ये बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस वाली कोई टर्म हो या फिर कोई और किसी तरह, तो आपकी बॉडी दोबारा डाउन आ जाएगी. इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है. सबसे पहले मिनिमम जो कार्डियो होता है वीक के अंदर, चाहे किसी भी तरह का पर्सन हो, वेदर ही इज अ फैट लॉस क्लाइंट, ही और शी इज अ फैट लॉस क्लाइंट, मसल गेनिंग क्लाइंट, क्या उन्हें ये टोनिंग करनी हो, लीनिंग करना हो, मस्कुलर एंड्योरेंस करना हो, कुछ भी करना हो, एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन तो कार्डियो करना ही पड़ता है. अब कार्डियो करना बात अलग है, किस इंटेंसिटी पे करना है वो बात अलग है. तो किस इंटेंसिटी पे करना है? अगर आपका गोल परफॉर्मेंस का है, और परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल अगर किसी साइकिलिस्ट को करना है, मैराथन वाले को करना है, तो फिर उसको कार्डियो ज्यादा करना पड़ेगा. उसकी बेसिक नेसेसिटी कार्डियो बढ़ जाएगी. पर जैसा आप वेट ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहती हैं, आपको शायद पता हो कि जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं या मेंस फिजिक पर्संस होते हैं, वो कार्डियो दिन में एक बार तो करते ही करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि मसल गेनिंग में हेल्प होती है. कैसे हेल्प होती है वो मैं आपको बताता हूं. जब आप कार्डियो करते हैं ना तो 3 चीजें मोस्ट इंप्रूव होती हैं. एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है मायोग्लोबिन और एक होता है कैपिलरीज. माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे पावर हाउस ऑफ सेल, जहां से हमारे सेल को पावर आती है. ठीक है, एटीपी जो हमारा वहां से सिंथेसाइज होता है. जितनी ज्यादा आपकी पावर आएगी उतनी ज्यादा जब आप वर्कआउट करेंगे, जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, उस टाइम आप ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे या फिर ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म कर पाएंगे. तो इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर गया ना. उसके बाद था मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन इज मसल्स प्रोटीन. मसल में जितना ज्यादा प्रोटीन होगा तो जितनी वो कैटाबॉलिक स्टेट में गई है उतनी जल्दी वो एनाबॉलिक स्टेट में भी आ जाएगी. और लास्ट इज कैपिलरीज. अब कैपिलरीज का नंबर नहीं बढ़ता, पर कैपिलरीज की आपका ना डेंसिटी बढ़ती है कार्डियो ट्रेनिंग से. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से उल्टा हो जाता है, वो कम हो जाती है. तो जितना आपका कैपिलरीज हाई होंगे उतना आपका जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा. और जितना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो रहेगा उतना ही ज्यादा आपका ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी होगी. ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी मींस पंप. जो हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम पंप आता है. जितना ज्यादा पंप आएगा उतना तो माइक्रो टेयर्स आएंगे. ठीक है, मसल के अंदर छोटे छोटे टेयर्स, जितने माइक्रो टेयर्स आएंगे उस हिसाब से आपके उस मसल के अंदर फूड जाएगा. जितना फूड जाएगा उस हिसाब से बॉडी ग्रो करेगी. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दिन करना चाहिए. अगर परफॉर्मेंस क्लाइंट है तो वो उस हिसाब से बढ़ जाएगा. अब सबके लिए कंडीशनिंग अलग अलग हो जाती है, तो उसी कंडीशनिंग लेवल को देख के वो काम करना पड़ता है. और वही फिर CSCS का काम होता है, वो बताना. So my next question is like हमारे जो यूथ है वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग में है. In Delhi also I've seen lot of people sitting in a bar and cafes and smoking and drinking. And और आज जब ये कोविड हो गया तो उसके बाद जो स्मोकर्स हैं और ड्रिंकर्स हैं उनकी बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट हुआ है कोविड का?
और वो रिकवर कर सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल चेन स्मोकर है और एल्कोहलिज्म वो करता है इनटेक, तो अगर उसे कोरोना होता है तो क्या वो ठीक हो सकता है या कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? या देखिए, डिपेंड करता है कि वो अल्कोहलिज्म या चेन स्मोकिंग की वजह से उसके लंग्स के अंदर कितना इफेक्ट आया है, ठीक है, उसके स्टमक, उसके ऑर्गन्स के अराउंड कितना ज्यादा डैमेज आया है। अब जितना अल्कोहल कंज्यूम करेंगे उतना आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भी चीज आप इंटेक करते हो वो लिवर के थ्रू पास होती है, और लिवर के थ्रू जो पास होती है सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन। तो हर एक चीज हिपैटिक सर्कुलेशन से जाएगी। जितना आपकी बॉडी में टॉक्सिक कंपाउंड्स होंगे उतना वो लिवर को डैमेज करेंगे, जितना लिवर को डैमेज करेंगे तो लिवर में काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, पर दो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, एसजीपीटी एंड एसजीओटी, सीरम ग्लाइसेमिक, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक ट्रांसमिनेस, और आपका सीरम ये ग्लूटामिक, और इस तरह के ट्रांसमिनेस। तो ये आपके एंजाइम प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, इसीलिए इन प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिपेंडिंग कि किस हिसाब की उसकी सिवियरिटी है। तो मेन बात ये होती है कि ये सारे जो मैंने कंपाउंड्स गिनवाए, ये कितने कम या कितने ज्यादा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है इम्यूनिटी। देखिए, इवन ये तो बात ये डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते कि वो कितने दिन में ठीक हो सकता है, तो आप और हम तो है ही कहां पे। बस ये है कि इम्यूनिटी वाइज एटलीस्ट 10 डेज तो मिनिमम लगते ही लगते हैं इस टाइप के वायरस को बॉडी से जाने के। सो द आंसर इज कि स्मोकर एंड जो ड्रिंकर होते हैं लाइक उनको एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जो ये सब नहीं करते, उनसे ज्यादा टाइम लगेगा और उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वोलाई, जितनी उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी उतना ज्यादा आपका लंग और अच्छे से ये काम कर पाएगा। जितना लंग ज्यादा डैमेज होगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वायरस ही डायरेक्ट लंग के ऊपर अटैक कर रहा है। इसीलिए आता है ना वो ये पैकेट्स के ऊपर कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स, ईट ऑन योर ओन रिस्क, तो बताया तो सब जाता है। टेकिंग इट स्मोकिंग इज इन बात नहीं मानी तो हमारी क्या ही मानेंगे, जिसको नहीं माननी। And I was just reading about this intermittent fasting and trying also to remove all the toxins from my body because nothing was helping me out. I did it for 2 to 3 days and after that I really felt very good after a long period of time because मुझे बहुत टाइम से अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो I was like let's try something different. So I just tried it out and हमारे इंडिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग को फैट लॉस से जोड़ दिया गया है बिकॉज हर चीज को यहाँ पे फैट लॉस से जोड़ देते हैं। आप अगर कीटो कर रहे हो तो या फैट लॉस कर रहे हो, अगर आप कोई डाइट कर रहे हो तो या फैट लॉस कर रहे हो। और इसकी वजह से जो हमारी जो लोग हैं यहाँ के वो उस चीज को ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते बिकॉज उनके माइंड में ये चीज है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? बिकॉज हमारे इंडिया में जो ये फास्टिंग का कल्चर है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अभी मॉडर्न फैमिलीज एंड मॉडर्न पीपल दे डोंट बिलीव इन इट बिकॉज हमारी जो मार्केट है वो इस तरीके से बनी हुई है कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं लोगे तो ये हो जाएगा बिकॉज उनको अपना सामान बेचना है। अगर कोई सीरियल कंपनी की अगर किसी सीरियल कंपनी को सीरियल बेचना होगा तो वो कैसे बेचेगा उसको? ऑब्वियसली वो बोलेगा ना कि खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये हो जाएगा। ऑब्वियसली सीरियल या फिर आप ओट्स खा रहे हो, ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। बट माय क्वेश्चन इज वंस इन अ व्हाइल वी ऑलवेज go on fasting mode where we should switch off our bodies mechanism कि वहां पे वो बॉडी काम करना कुछ डेज के लिए बंद करे कि उसको रिप्रोडक्शन का अंदर से मौका मिले। बट ऐसा हो नहीं पाता है, हम पूरे टाइम बस खाते ही रहते हैं। हमारा लिवर, किडनी या फिर कुछ भी कभी भी वर्क करना बंद नहीं करता। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग? इज इट गुड to do one, like not for 10 days 15 days, like once in a while? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझने के लिए ना मैं अपने कल्चर में थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। जैसे आपने बहुत ही ये राइटली पॉइंट आउट करा कि फास्टिंग आज का नहीं है, लाखों सालों से चला आ रहा है। और आजकल के टाइम में आज से 10 15 20 साल की मैं जो बात करूं तो हम फास्टिंग क्यों करते हैं कि पति की उम्र लंबी हो जाए, ठीक है, वाइफ ऐसी मिल जाए,
ये हो जाए वो हो जाए, फास्टिंग इसके लिए नहीं बनी है। फास्टिंग बनी है कि आपकी बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें फूड ट्रैवल करता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जहां पे सारा वेस्ट आपका द्वारा जाके जम जाता है, उसको साफ करने के लिए बनी है, ताकि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, इसीलिए बनी है। और इसीलिए आपके जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जो आप सारा साल जो आप जंक खाते हो किसी भी तरह का, चाहे कितना अच्छा फूड आप क्यों ना कंज्यूम करें, वो आपकी बॉडी के ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो उसके ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे सारा लार्ज इंटेस्टाइन, और आपके रेक्टम और एनस से एक्सक्रीट करते ही है। पर नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, कुछ ना कुछ वेस्ट तो रह ही जाता है। तो उसको फ्लश आउट करने के लिए, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए फास्टिंग बनाई गई थी। और उसमें यही हुआ करता था कि आपको साल भूखा नहीं रहना है। पति की उम्र ऐसे लंबी नहीं होती, बट अगेन जो ट्रेडिशन है वो है, और वो चलते भी रहेंगे और चलते रहने भी चाहिए। पर ये कमिंग बैक टू फास्टिंग, तो फास्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपको पूरा दिन में फ्रूट्स ही खाने होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मैं उसके बाद में आऊंगा इस बात पे। पर जो मेन जो आपकी फास्टिंग होती है उससे आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। फ्रूट्स के अंदर होते हैं आपके एम्पल अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स, जैसे मैंने इससे पहले पॉइंट आउट किया है कि अगर आपकी बॉडी में माइक्रोज होंगे तभी आपकी बॉडी में वो मैक्रो, जितना आप 200 ग्राम प्रोटीन, 300 ग्राम, 150 ग्राम आप अपनी ये क्या बोलते हैं ये बॉडी वेट का 2 टाइम्स, 1 टाइम, 2.5 टाइम, 3 टाइम्स वो ले रहे हो, तब जाके वो मेटाबोलाइज होगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। वो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा देगा, वो आपकी बॉडी के फंक्शंस को चैलेंज कर देगा, किडनी को चैलेंज कर देगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये एक तरीके से ये रेनल फंक्शन, उसको इंपेयर कर देगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो जब आपकी बॉडी विटामिन और मिनरल्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो वो आपकी गट के हेल्थ के लिए, गट फ्लोरा के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और जब गट फ्लोरा अच्छे से रहेगा तो आप कोई भी फूड उसके बाद खा लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने फास्टिंग करनी है, आपको 1 दिन फास्टिंग करनी है, फिर आप महीने 2 महीने बाद कर लीजिए। आइडियली जो फास्टिंग होती है ना वो हफ्ते में 1 बार तो होनी चाहिए, पर हम कोई भी चीज आइडियल नहीं करते, तो 2-3 महीने के अंदर आप कर सकते हैं, पर नहीं करते, तो इसीलिए ये नवरात्रे बनाए गए हैं, ये इसके लिए थे। अब कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? 16-8 वाला, ईट स्टॉप ईट वाला, ऑल्टरनेट डे वाला, कौन सा वाला करते हैं आप फॉलो? Actually, right now I'm doing of 2 days on switch and off, like 2 days fasting and 1 day of eating. Because right now I'm doing dry fasting, not exactly intermittent fasting. I'm on dry fasting where I'm not even, drinking water. I'm because in this what happens, like what I know that in dry fasting as well, हमारी जो body होती है वो bad cells को sacrifice करती है to sustain our body for a longer period of time. But if you eat something like जैसे आपने बोला कि नवरात्रे के टाइम जब लोग फास्ट करते हैं तो पूरे दिन साबूदाना खाते हैं and they think that they are fasting. This is not fasting because you are still eating. They are whole day they are eating like potato, fruits, and like whatever you say, and they say that they are fasting. And होता ये है कि we end up eating more in fasting. I've seen that. Definitely. So right now तो मैं ड्राई फास्टिंग पे हूँ एंड मेरा यूरिक एसिड, मैंने आपको बोला है कि मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। आफ्टर 24 years ऑफ माई लाइफ मेरा जो वो प्रॉब्लम है वो मुझे बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड आई टॉक टू शान एज वेल। आई हैड दिस बॉडी स्वेलिंग प्रॉब्लम इन माई बॉडी। मेरे बॉडी में बॉडी स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी बार बार, एंड विद इन 2 days it's gone. Inflammation is gone and I feel more energetic. So I'm just I just want to tell my viewer as well कि जो intermittent fasting है वो हमारी बॉडी, हम मरेंगे नहीं वो करके। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है किसी भी चीज में खुद को एडजस्ट करने के लिए। एंड व्हाट आई नो अबाउट दिस कि हमारी बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स होते हैं जो काफी टाइम तक स्टोर होते हैं। एंड व्हेन यू फील हंग्री, अगर आपको बहुत कार्ब्स, हाई शुगर एंड ये सब खाने का मन कर रहा है तो आपकी बॉडी में वो जो बैड सेल्स हैं वो उनको चाहिए ये सब हाई शुगरी फूड, हाई कार्ब्स फूड, बिकॉज वो हाई शुगर और हाई कार्ब्स खा सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में गुड सेल्स होते हैं उनको ये सब हाई शुगर, हाई कार्ब्स एंड ये सब जंकी फूड नहीं चाहिए। एंड उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, उसको अच्छा खाना देने के लिए, उसको और अच्छा वर्क करवाने के लिए वी डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहां पे हमारी बॉडी जो बैड सेल्स होते हैं उसको सेक्रीफाइस करती है अपनी बॉडी को काफी लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए।
सो ओके सो चलिए एक्चुअली मैं नॉट ऑन मैंने 2 दिन मैंने 2 days वाटर वाली फास्टिंग करी थी. नाउ आई एम लाइक ऑन 24 hours ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ड्राई फास्टिंग. मेरा आपसे क्वेश्चन है, इतनी जो बात आपने बताई, जितना मैं समझ पाया, आपने शायद एक पॉइंट बोला था कि मैं पानी भी नहीं पी रही हूँ. इज दैट ड्राई ट्रू? फास्ट, या पूरा like दिन? yep, for 24 hours only, like only for 1 day, not for like मैंने 2 दिन जो फास्टिंग किया था उसमें I was having fruits like watermelon जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है. और बिकॉज ऑफ माई दिस प्रॉब्लम मुझे सारे फ्रूट्स भी लाइक सिट्रस फ्रूट्स मुझे सूट नहीं करते हैं बिकॉज मुझे ये प्रॉब्लम है इसकी. तो जो आज मैं हूँ वो मैं एक्चुअली ड्राई फास्टिंग पे हूँ, नॉट एग्जैक्टली ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग. टुडे आई एम ऑन ड्राई फास्टिंग वेयर बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसे भी फास्ट हैं जिसमें आपको पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है. देयर आर सो मेनी फास्टिंग जहाँ पे आपको पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है. तो आपको आपका इसके बारे में क्या है, मतलब ड्राई फास्टिंग के बारे में? देखिए, ड्राई फास्टिंग अगेन अगर आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेंगे, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है कि वो काफी सारी चीजों को झेल सकती है. हम क्या सोचते हैं कि अच्छा मेरे को अब गेन करना है या लूज करना है तो मेरे को फ्रीक्वेंट मील्स की जरूरत है, मेरे को ये करना है, 2 बज गए, अच्छा 4 बज गए, गेन कैसे होगा, प्रोटीन नहीं लिया मैंने. ये सारी चीजें हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती. हम साइकोलॉजिकली सारी बातों के ऊपर फोकस रखते हैं और उसी की वजह से हमारा मसल मास लॉस होता है क्योंकि हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं. स्ट्रेस में ज्यादा आएगा तो आपके फिर एक तरह का जो होता है हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल, वो ज्यादा सिक्रीट होगा और कॉर्टिसोल का मेन काम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का होता है. नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आपने बोला कि आप पानी भी नहीं पीते. देखिए क्या होता है कि जो वाटर है ना हमारी बॉडी की, इस पृथ्वी पे जिस भी जान की बेसिक नेसेसिटी है. तो चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, अब आप कह रहे हो कि आपको सिट्रस फ्रूट जो कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप वो कर लेते तो शायद मैं मानता भी कि पानी की रिक्वायरमेंट आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है. पर जो हमारी बॉडी के सेल्स है ना, जो हमारा ब्लड होता है, उसको भी प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है. और जो प्लाज्मा होता है वो आपके ब्लड सेल्स का अप्रोक्सीमेटली 57% होता है. दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल. ब्लड सेल हमारे 3 होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा. तो प्लाज्मा 57% होता है, तो उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. और प्लाज्मा ही होता है जो आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है. हमारी बॉडी में ब्लड होता है हर जगह, तो ब्लड से ही जो भी हम खाना खाते हैं, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, वही आपके सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी कम हो सकती है. ब्लड की विस्कोसिटी मतलब है ब्लड गाढ़ा ज्यादा हो सकता है और गाढ़े की वजह से फिर प्रॉब्लम आ सकती है. तो ड्राई फास्टिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी बॉडी पे अगर ये बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है. पर इसके साथ साथ पानी को बिल्कुल छोड़ देना, दैट इज आई थिंक नॉट अ गुड ऑप्शन. बाकी सबकी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट करता है एंड यू नो योर दिस बॉडी बेटर देन आई नो अबाउट योरसेल्फ. तो ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि जो एक फेमस कोट है कि आप बिना खाना खाए ना 21 दिन तक रह सकते हैं, पर बिना पानी पिए आप 3 दिन तक भी नहीं रह सकते. तो एक्सट्रीम कंडीशन हमारी बॉडी जा सकती है. ऐसा नहीं कि एक दिन पानी नहीं पिया तो हम कोई मर जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा हो जाए. मेरा वो नहीं है कहने का, बट जितना हम हेल्थी प्रैक्टिस में रहेंगे, पानी पीने से वो 0 कैलोरीज का होता है और वो आपकी बॉडी के जो भी चीजें सप्लाई हो रही है उनको हेल्प कर रहा है, तो उसको कम कर. आपने बाकी सारे जो आप ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं, टॉक्सिन्स जा रहे हैं, वेदर इन अ गुड फॉर्म वेदर इन अ बैड फॉर्म, उसको तो आपने कंट्रोल करा ना. साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी है. फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि जिम, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब आप नॉर्मली फिजिकल एक्टिव है. सारा काम आप सीडेंटरी होके नहीं कर रहे हैं. You're doing a good kind of workout, you're doing flexibility, and maybe you may be doing the this part, that is the meditation अगर आप करते हो, तो इससे भी आपकी बॉडी की ना एनर्जी अपर लेवल पे जाती है. तो आई वुड रिकमेंड कि वाटर को छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता. यू शुड इनटेक वाटर. मैं ये नहीं कहता कि हर एक घंटे में आपको पानी पीना है इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, बट नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी. Whenever you feel thirsty, जब भी आपकी बॉडी पानी मांगते हैं तो you should drink. Same goes with food as well. जब आपको भूख लगती है आपको कुछ खाना चाहिए. बॉडी पानी मांगती है ना, इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है. तो प्यास लगने से पहले ही पानी पीना है. ज्यादा पानी ना पिए, पर नॉर्मल अमाउंट पी ले. 200 ml, 250 ml, 150 ml, जितना हो सके. और पानी पीने का भी तरीका होता है. हम लोगों को प्यास क्यों नहीं फील होती?
क्योंकि हम खड़े होकर पानी पीते हैं और एकदम गटर गटर करके पानी को पी जाते हैं, ठीक है, एक सिप के अंदर मेरा चले एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे घर में भी बोलते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए, सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस थिंग कि बैठ के पानी पीना चाहिए और खड़े होके पानी पीने में क्या डिफरेंस है? लाइक बहुत लोगों का भी ये क्वेश्चन होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि खड़े होके पानी पीने से घुटनों में पानी नहीं जाएगा, तो पीने पी सकते हैं, ठीक है, ये हुआ। मेरा पॉइंट बैठ के पानी पीने का ये है, जब हम बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अब ईसोफेगस के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होता है पेरिस्टेल्सिस और एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो पेरिस्टेल्सिस जो होता है वो वेव लाइक मोशन होता है, जो खाने को वहां से अलाउ करता है कि चला जाए, और कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो एक तरह की ओपनिंग होती है कि ईसोफेगस से आपके स्टमक में फूड चला जाए। तो अगर आप खड़े होकर पिएंगे ना तो उनकी फंक्शनिंग चैलेंज होगी, उनके ऊपर ज्यादा लोड आएगा, पानी एकदम से गिरेगा। तो अगर आप बैठ के पिएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, घूट घूट करके पिएंगे, तो आसानी से आपके ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक एरिया में जाएगा, जिससे आपकी बॉडी को और अच्छे से एब्जॉर्ब करा पाएंगे। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, या व्यूअर्स हमारे, कि एक आप फास्ट सेट्स कर रहे हैं, ठीक है, वो बोन्स के ऊपर ज्यादा जा रहा है, पर एक आप मसल माइंड कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं तो आपकी मसल के ऊपर ज्यादा जा रहा है। तो इफेक्टिवनेस कहां आएगी? जहां पे आप तरीके से करोगे। और कोई भी काम जब तरीके से होता है ना वो स्लो ही होता है। खाना जब आप एक अच्छे लेवल का पकाते हैं, अच्छा पकाते हैं, तो वो एकदम लो गैस पे होना चाहिए। वर्कआउट करते हैं तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हाई होना चाहिए। कभी भी आप कोई काम करते हैं तो संभल के देख के काम करना चाहिए, जल्दबाजी में ही ज्यादातर हम गलत जाते हैं। तो चीजें बहुत सिंपल हैं, पर लोग इसी चीज को सही नहीं कर पाते। वो दवाई खा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लेंगे, पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, पर ये चीजें ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने भी पानी पिया तो एक घूंट, मैं चाहता तो मैं भी एक बार ही पी सकता हूं, इससे कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर सकता हूं, पर मेरे को पता है कि वो मेरी बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर भी लोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन ऐसा कर लोगे तो बॉडी में कुछ इफेक्ट आ जाएगा, ये हैबिट बन जाती है। जब कोई चीज हैबिट बन जाती है ना, वो बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक दो दिन चीट मील खाने से या फिर एक दो दिन कुछ और चीजें ऐसे करने से आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, उससे बॉडी कुछ नहीं होगा, बॉडी सब कुछ संभाल लेगी, पर उसको हैबिट बनाते हैं प्रॉब्लम जब आती है। So moving on to my next question. जी, द क्वेश्चन है कि आपने काफी बॉयज में और गर्ल्स में, यूथ में ये प्रॉब्लम देखी स्पॉट्स का। उनको स्पॉट हो जाता है जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं आफ्टर 20s और आफ्टर 60 तो स्पॉट लाइक और लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज उनको होने लगते हैं, और हेयर ग्रोथ, और लाइक हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे, हेयर फॉल हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहा है और स्पॉट्स आ रहे हैं। तो इसका क्या है? लाइक व्हाई ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडनली उनकी बॉडी में ऐसा क्या चेंज होता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होने लगती है? अगर वो अच्छा है, फिर भी अगर मैंने सुना है कि वो लोग पहले तो बोलेंगे कि हम पूरे दिन में कुछ खाते ही नहीं है, या तो कुछ खाते बहुत अच्छा खाते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ पीपल, जो बहुत ही जंक खाते हैं, एक कुछ खाते ही नहीं है, और एक जो है कि बहुत अच्छा खाते हैं फिर भी उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्यों होती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स? फर्स्ट आंसर इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सेकंड इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें ना आपकी बॉडी बहुत अलग तरीके से अटैक करती है। तो एक पॉइंट जो आपने बोला उसको मैं पॉइंट आउट करूंगा, दैट इज कि जो लोग बिल्कुल सही खाना खाते हैं उनको ही प्रॉब्लम होती है। सही खाना क्या होता है? वो क्या कर रहे हैं कि ब्रेड के अंदर ना अलग अलग तरह की चीजों को डाल रहे हैं, दूध के अंदर जो मिल्क होता है उसके अंदर अलग तरह की स्मूथी बना रहे हैं। तो दूध का जो मेन काम होता है ना वो रात के लिए होता है, दूध रात में ले जाता है। दही वाले प्रोडक्ट होते हैं ना वो दिन में ले जाता है। खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी पीना चाहिए और खाना खाने से आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सबकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, और मैंने मायफा गुड़गांव के पेज के ऊपर एक काफी सारी वीडियोस भी हैं, और मैं अपनी क्लासेस में भी समझाता हूँ। जो CFT, CNS, CSS और ये लेवल 4 क्लासेस में होते हैं। क्वेश्चन पूछूंगी, खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का क्या मेथोडोलॉजी लाइक ऐसा क्यों करना चाहिए? हालांकि मायफा गुड़गांव की ये पेज के ऊपर ये वीडियो है, अगर जिस व्यूअर को समझना है तो वहां जाके भी चेक कर सकता है। बट आपने क्वेश्चन किया है तो अभी एज लाइव के अंदर तो मैं बता देता हूं क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं ना
तो उसके अंदर जो हमारा स्टमक के अंदर एसिड होता है दैट इज HCl, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसको लेंटर के ऊपर से डाल दूं ना तो वो लेंटर को 10 मिनट में पिघला के जमीन पे आ जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है वो एसिड। पर हम जिंदा कैसे हैं? हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब वो एपिथेलियल टिश्यू रावण के सर की तरह है, जब वो एसिड जलाएगा वो फिर बन जाएगा, फिर एसिड जलाएगा फिर बन जाएगा। पर एसिड जलाता कब है? एसिड जलाता जब है जब आपकी बॉडी को लंबे समय तक फूड ना मिले, तब जलाता है, या फिर आपको फ्रीक्वेंट मील्स आप ले रहे हो कि एसिड वो बन ही नहीं पा रहा, जब भी आप डाल रहे हो तो वो फूड फिर नेगेटिव इफेक्ट आपकी उस लाइनिंग पे डाल रहा है। तो जो खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी इसलिए पिया जाता है ताकि जो आपका ईसोफेगस है उसकी लाइनिंग को आराम से वो हम ये करा दें, जिसको बोलते हैं लुब्रिकेशन, आराम से स्मूथ वे में खाना ट्रैवल करे, फूड ट्रैवल करे, और उसके बाद जो आपका एसिड उछल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए हम शांत कर पाए, ताकि आधे घंटे बाद भाई खाना आ रहा है, थोड़ा सब्र कर ले, ठीक है, थम जा थोड़ा, उसके बाद आएगा, फिर उसको ब्रेक डाउन कर दियो। ये हमारा होता है आधे घंटे पहले जब हम खाना खाने से पानी पीते हैं। आधा घंटा पानी बाद खाना खाने के इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जब आप कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो स्टमक के अंदर, जैसे मैंने बताया, HCl होता है, लिवर से आता है बाइल जूस, पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस। तो ये सारे जूसेस जो होते हैं, जो आपके एसिड्स होते हैं, ये जो फूड आया है उसको मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं, उनको फाइनल पार्टिकल से ब्रेक डाउन करते हैं। जितना आपके पार्टिकल्स फाइन और होंगे उतना ही वो आपके अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर पाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही पतली पाइप होती है, उसके अंदर एक बड़ा पार्टिकल नहीं जा सकता, तो उसको एकदम फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और इसीलिए उसको टाइम चाहिए होता आधा घंटा उस फाइनल पार्टिकल से ब्रेक डाउन करने के लिए। आधा घंटा से पौना घंटा से 1 घंटा, एग्जैक्ट टाइम तो अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1 घंटा, पर जो वेट नहीं कर सकता आधा पौना घंटा भी चलेगा। तो उससे क्या होता है, उस एसिड को टाइम मिल जाता है कि वो अच्छे से उसको वो मेटाबोलाइज कर पाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने टाइम दिया हुआ है 6 से 7 इसका है, 7 से 8 उसका है, तो 7 से 8 वाला बंदा 6:30 बजे आ गया, तो फिर आप जो ये क्लाइंट है जो पहले से चल रहा है उसको भी आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सबका टाइम एलोकेटेड है कि उसको इतना टाइम तो चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपने बीच में ही पानी डाल दिया तो उसके जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हिंड्रेंस आ जाएगी, तो फिर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करेगा। और यही मेरा एक और पॉइंट पे आता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं पर हम गलत समय पे खा रहे हैं, सही फूड को सही टाइम पे नहीं खा रहे। आपका जैसे मैंने बताया जो दही वाले प्रोडक्ट्स हैं, दही छाछ वाले, ये दिन के टाइम होने चाहिए, दूध वाले रात के टाइम होने चाहिए, नमकीन वाले प्रोडक्ट्स को कभी भी दही के साथ, ये कभी भी दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना। नमकीन जो हो गई, जो हम चाय के साथ ये नमकीन खा लेते हैं, कुछ और चीजें खा लेते हैं, नट्स खा लेते हैं, ये सब ये इसके लिए नहीं बने, ठीक है। नट्स मतलब वो वाले नहीं जो ये नमकीन वाले आते हैं पैकेट्स वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो हमारे खाने का तरीका है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या खा रहे हैं, लगभग तो आज के टाइम में लोग सही खा रहे हैं, पर वो तरीका अभी समझ में नहीं आया है। और ये तरीका कुछ नया नहीं है, सारा मैं एंशिएंट साइंस की बात कर रहा हूं, आयुर्वेदा की बात कर रहा हूं। So moving out to our question that लोगों को हेयर फॉल का, स्पॉट्स का एंड इन सब चीजों का प्रॉब्लम होता है, तो हमारे यूथ को ये सारी प्रॉब्लम्स आज क्यों हो रही है? हमने बहुत सारे यूथ में देखा है कि उनको बहुत छोटी एज से हेयर फॉल का प्रॉब्लम होने लगता है, जबकि हम अपनी मम्मा को देखें, दादी को देखें, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुई है, और उनको फेस पे स्पॉट का प्रॉब्लम भी कभी नहीं हुआ है। लेकिन हमारे मॉडर्न कल्चर में जब से ये न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं और जब से ये लोग लोगों का खान पान चेंज हुआ है, तब से हमारे यूथ को ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, जहाँ पे उनको हेयर फॉल होता है, स्पॉट्स होता है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत होता है। ये पीसीओडी, पीसीओएस पहले इतना नहीं था, डायबिटीज पहले इतना नहीं था जितना अब ये लोगों को हो रहा है। लोगों को अब कैंसर भी ज्यादा हो रहा है, लोगों को अब पीसीओडी भी ज्यादा हो रहा है, लोगों को डायबिटीज भी ज्यादा हो रहा है, और अजीब और न्यू तरह की बीमारियां लोगों को अब हो रही हैं जो पहले लोगों को नहीं होता था। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आराम से अपना 90 क्रॉस करते थे, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि लोग इजिली 80 भी क्रॉस नहीं करते, उनको उससे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? अगेन माय आंसर विल बी द सेम, दैट इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कि हमारा लाइफस्टाइल उस तरह चेंज हो, पहले हम फिजिकल काम करते थे। एग्जाम्पल मैं लेके चलूंगा सर दाढ़ी मजदूर का। दाढ़ी मजदूर कितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से खाना खाता है, उसका मेरे इधर 50% भी नहीं खाता जितनी वो मेहनत करता है। और हम जितनी मेहनत करते हैं उसका डबल खाना चाहते हैं, प्रोटीन पूरा हो जाए, कार्ब कम रहे।
फैट मॉडरेट रहे, फैट ज्यादा रहे, प्रोटीन ज्यादा रहे, कार्ब कम रहे, कुछ भी तरीके, हमारी जो सारी फोकस होती है वो डाइट पे चली जाती है। पर डाइट जब काम करेगी जब फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल पे होगी, तो इसीलिए आपको पहले ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। हम काम चाहे जो भी करें, हम खाना ज्यादा खाना है, चीट मील करनी है, आज पिज्जा खाना, आज बर्गर खाना, आज ये करना है, वो करना है, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो ये सारी चीजें हैं, आपको इसको दूर करना पड़ेगा। आपको खुली हवा में सांस लेनी पड़ेगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने दिन की बढ़ानी पड़ेगी। पहले वाले लोगों को ये पता रहता था कि किस फूड को किसके साथ खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट किस टाइम खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट कब कैसे खाना चाहिए, अगर बुखार हुआ है तो कौन सा फ्रूट खाएं, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो कौन सा ठंडा रहेगा फ्रूट शरीर के लिए, कौन सा गर्म रहेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और ऐसे ही आपका सारा खाने के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडर्न चीज लेके चलता है, आइसक्रीम। आइसक्रीम वैसे ठंडी होती है पर उसकी तासीर गर्म होती है, वो बॉडी के अंदर और गर्मी कर देती है, और हम ये समझ जाते हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, आइसक्रीम खा लेते हैं तो बॉडी में ठंडक पहुंचेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो समझते तो हैं कि बहुत अच्छी है, पर वो बॉडी में हम जिस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो जहर बना रही है। और इसीलिए डाइजेस्टिव इश्यूज और जो भी सारी प्रॉब्लम होती है ना, वो मेनली आपकी गट से स्टार्ट होती है। तो आपका गट हेल्दी नहीं है ना, तो फिर कुछ ना कुछ, चाहे बाल उड़ने का, चाहे ये क्या बोलते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बहुत सारे डिसलिपिडेमिया, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे ना, खाना पीना आप नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है, रोटी सब्जी दाल खा लीजिए इंडियन कल्चर के हिसाब से, यू विल बी दिस लिविंग दिस लाइफ मोर देन इनफ। काफी कुछ अच्छा ही आप जी पाएंगे, लंबा ही जी पाएंगे। जितना हम फैंसी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं ना, उतना ही हम काफी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फोन्स आ गए हैं, ठीक है, और भी काफी सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम इतने एडवांस हो गए हैं जिस वजह से जो हमारा लाइफ स्पैन है वो कम हो गया, क्योंकि फोन्स के अंदर भी क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं। उसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजों में ये रेडिएशंस एमिट होती हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बनने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम अपने से दूर भी नहीं कर सकते। जैसे कि लोगों ने बहुत कंप्लेन किया है कि पहले वो लोग रोटी खाते थे, अब उनको रोटी पचता नहीं है, बिकॉज आटे में होता है ग्लूटेन, जिसकी वजह से वो खिंचता है, और मैदे में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो खिंचेगा। तो लोग जब वो रोटी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और बिल्कुल ओट्स पे स्विच कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी ग्लूटेन के लिए इनटॉलरेंस हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी डाइट में हमें किसी भी फूड को टोटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, कि हमें ये चीज बिल्कुल ही नहीं खाना, कि हमारी बॉडी उस चीज को भूल जाए। तो वो जैसे कि बहुत सारे डाइट होते हैं कि आपको कुछ नहीं खाना, आपको रोटी पूरे दिन नहीं खाना, आपको चावल पूरे दिन नहीं खाना, या फिर आपको ये स्पेसिफिक फ्रूट पूरे दिन नहीं खाना, आपको जब तक ये डाइट है तब तक ये नहीं खाना। और उसके बाद उनकी कंप्लेन होती है कि हमारी बॉडी अब इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। What to do now? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि किसी भी चीज को हमें ना टोटली नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए, उसको पार्शियल वे में उसको छोड़ देना चाहिए और फिर अलग चीज पे जाना चाहिए। जैसे आपने एक नाम लिया ग्लूटेन का, ग्लूटेन एक तरह से वही वर्ड आजकल चल गया, जैसे आज से 10-15 साल पहले कोलेस्ट्रॉल चला था कि किसी चीज में कोलेस्ट्रॉल है तो बुरा है, ग्लूटेन है तो बुरा है। ग्लूटेन बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। अगर आपकी बॉडी के लिए, अगर आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, आपकी बॉडी में वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, तब प्रॉब्लम है। जैसे लैक्टोज क्या होता है, मिल्क के अंदर शुगर होती है जो नेचुरल शुगर होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, पर अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है तब उसके लिए वो चीज प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये नहीं कि अगर किसी ये स्पोर्ट्स पर्सन ने या फिर सेलिब्रिटी ने ये कह दिया कि ग्लूटेन बहुत गलत चीज है, खाना ही नहीं चाहिए, प्रोटीन तो बहुत गलत चीज है या बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ऐसे नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसा बॉडी टाइप है, कैसा आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके अलावा कैसे कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, किसी और एरिया में रह रहे हैं, धूल वाले में ज्यादा है, कैसे, उसके हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक पीकू वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम टुडे बिकॉज नाउ आई हैव माय क्लासेस आल्सो, तो हमें आज टर्मिनेट करना पड़ेगा। जो बाकी डाउट्स है वो हम कभी और लाइव करके फिर करेंगे। और जो स्टूडेंट से क्वेश्चन है, देखिए अभी मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो लाइव था वो यही था कि पीकू काफी सारे क्वेश्चंस थे, उनको मेरे को करना था आज के लिए एड्रेस। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि जो व्यूअर से क्वेश्चंस होंगे
उनको Yeah. हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा फिर जो भी यहाँ पे होस्ट होगा वो बताएगा. सो प्लीज pardon us for today, but from the next time we'll try to focus on the viewers. I hope But you I really had a great time speaking to you. You covered quite my whole topics. Like I still have so many questions, but I'll just ask you in in some other live session. तो आज का जो था बहुत अच्छा था, and आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने काफी सारे मेरे क्वेरीज को सॉल्व किया है, and next time जैसे कि आपने बोला, लोगों के क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे. फर्स्ट क्योंकि मेरे प्रायोरिटी. में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आज अभी एक पर्सन का आ रहा है कमेंट, अल्ताफ पठान सॉरी आज नहीं कर पाएंगे, और जो भी कर पा रहे हैं नेक्स्ट टाइम जब हम ये करेंगे लाइव, तो पहले ये मेरा ये प्रॉमिस है कि सबसे पहले व्यूअर्स के क्वेश्चंस को मैं पहले एड्रेस करूंगा, उसके बाद हम जो लाइव में पर्सन होगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे या फिर उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. सो प्लीज पार्डन अस फॉर टुडे. चलिए ठीक है, टेक केयर. You too. And Have a see you great next day. time. Okay, Yeah. have a good day.